قسمت چنگی ہے، وہ بچ گئی، انہیں کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ وہ تو مبارک جو تھا وہ اس نے بچ جانا تھا، اس کو ہو گیا نمونیا۔ مبارک کو کوئی سخت بیماری نہیں تھی کہ مرزا کو پتہ ہے کہ بچ جانا، تو اس کو نمونیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا علاج کرنے کی بجائے کسی کو ڈاکٹر دکھانے کے انہیں کیا کہ چلو یہ بیاہ کر دو۔ اب یہ ہے اس کی نبوت بھائی، مرزا مرتد کی مریض کا علاج کیا جاتا ہے، شادی نہیں کی جاتی، اور 7 سال کی عمر میں شادی نہیں کی جاتی، اور 3 سال کی لڑکی سے۔ اور یہ اسلام کے خلاف بھی ہے، شریعت کے خلاف بھی ہے، اور اس کی بڑی سخت سزا ہے جو اس قسم کی حرکت کرے کہ جناب تم مرتے ہوئے آدمی کا پہلے علاج کراؤ، 3 سال کی عمر میں تم نے شادی کر دی ہے۔ کون کرتا ہے 3 سال کی عمر؟ پھر کہتا ہوتا تھا کہ یہ جو سیدہ مریم ہے بیوہ ہے۔ پھر اس کا وہ خبیث کی نماز مدعا آیا تو اس نے کہا کہ بھئی تو تے پہلے ہی بیوہ ہے، چل میں تیرے تے احسان کرنا ہے، میرے نال بیاہ کر لے۔ یہ ہے ان کی کہانیاں۔ اور ناصرہ جی بیگم جی کا تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ وہی ہے جس کی روفو جو تھی، جس کو اس نے 500 روپیہ دے کے اٹھایا تھا۔ اس نے جس لڑکی کی شکایت کی تھی نا کہ یہ مرزا محمود کا یہ جو بھی ہے، وہ ناصرہ بیگم تھی، مشہور ہے اچھا جی۔ ہاں، ناصرہ بیگم وہی بیگم جے جنوں پٹھان 3 مہینے لے گئے پھر دے گئے کہ نہیں پسند آئی۔ او ہو اچھا ہاں، چندہ بہن آپ کو پتہ نہیں مرزا، مجھے پتہ نہیں کیوں پتہ ہے ان کے خاندان کا، بندہ بندہ میں جاننا ہے۔ جی جی کچھ حد تک تو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن مائیں پھر پتہ ہے ماں باپ چھپاتے بھی ہیں ان حقائق کو، یہ بھی ہے۔ لیکن یہ جو ناصرہ اور یہ جو مرزا طاہر کی امی ہے نا، اس کو ہماری نانیوں نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ مرزا طاہر کی ماں جو ہے، اس کا چال چلن، یہ قادیان میں ہی میرا حل فوت ہو گئی تھی نا، نہیں تو نہیں، یہ ربوہ میں بھی تھی۔ روا میں ہوئی تھی۔ اچھا اچھا، بیمار، یعنی کہ یہ ان کا دیکھا ہوا ہے ان کو، اور ان کی اللہ معافی دے انجام کار پھر چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہوتے تھے۔ یہ میرا خیال 38 37 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، زیادہ تھی اس سے عمر اس کی یہ۔ زیادہ؟ ہاں، اس کو اچھا فاطمہ اچھا، جناح ہاسپٹل لے کر گئے تھے، اور نچو نہیں مرزا، نہیں مرزا طاہر کی ماں جو ہے۔ ہاں سیدہ مریم کی بات کر رہا ہوں نا، وہ یوٹرائن کینسر سے فوت ہوئی تھی۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور یوٹرس کا کینسر ہو گیا تھا اس کو۔ ہاں جی ہاں جی، اور اللہ معافی دے تو بس استغفار۔ یہ 3 بہنیں تھیں اور یہ ایک مرزا طاہر تھا نا۔ ہوں۔ اسی کی مرزا طاہر نہیں، یہ جو تھے نا اس کے تو 22 23 بچے تھے جو مرزا محمود کے تھے۔ ہاں لیکن اس کی ماں کے، مرزا ماں طاہر کی ماں کے ماں 4 کی ہی بچے تھے، ایک یہ مرزا طاہر اور ایک ہاں، لیکن تین ماں تین جو ہے نا بہنیں۔ وہ اس کی جو پہلی بیوی تھی اس کی اولاد تھی، جو مرزا محمود کی۔ اچھا اچھا، ہاں، ناصرہ بیگم جو ہے، مرزا ناصر اور ناصرہ بیگم بہن بھائی ہیں، ماں باپ دونوں کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ جی ہاں جی۔ بڑا خراب قسم کا خاندان ہے، آپ اس کا کیا پوچھتے ہیں ان کی باتیں؟ یہ تو مطلب غیر انسانی قسم کا خاندان ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے ایک رکھا ہوا ہے کہ واہ واہ، آؤ آؤ جی آؤ، تمہیں ہم بیچیں ایسی چیز جو نہ ہاتھ میں ہے نہ نظر آتی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو یہ جھوٹ کیوں نہیں نظر آتا۔ ایسی بات کسی نے نہیں کہی۔ جو دنیا ہے ڈیوائن ورلڈ جس کو کہتے ہیں، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو فراڈیوں دھوکے بازوں کی دنیا ہے نا، وہ قادیانیت ہے۔ جی جی بالکل آپ بالکل۔ اس کی زندگی دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں، انہوں نے جو کچھ لکھے ہوئے ہیں واقعات جن کو یہ سیرت الماضی کہی پھرتے ہیں، ان میں سے آدھے جھوٹے ہیں، سراسر جھوٹے۔ اب دیکھیں، مجھے بتائیں کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ مرزا نے کتاب البریہ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے گھر میں چکی پیسنے والی عورتیں، پہلی بات تو ہے کہ کوئی عورت ان کے ہاں چکی پیسنے نہیں آتی تھی، یہ جھوٹ پہلا ہے۔ دوسرا جھوٹ اس نے لکھا کہ ہمارے ہاں چکی پیسنے والی عورتیں بھی تہجد پڑھا کرتی تھی، اور ہمارے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ چلو مان لیا بھئی، اب مجھے مرزے کا نہیں پتا، تو میں نے کہا واہ بھئی کیا کمال کے اس میں۔ اور پھر مرزا بانو سے کہہ رہا ہے، وہ پوچھتی ہے نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟
मिर्जा कह रहा है जी एदा ना सवाब जे ना गुनाह जे, दिल करे तो पढ़ लिया करो। फिर मिर्जा यल्लाश का अपना एक इल्हाम लिख कर गया, तस्करा में भी दर्ज है ये। कहता है कि तेरे काम तेरी नमाजों से अफजल हैं। लोगों ने पूछा, वो मिर्जा नमाज क्यों नहीं पढ़ता, सफाई क्यों नहीं करता? तो उन्हें चटपट अगले दिन इल्हाम कर लिया। कहता है मैनू इल्हाम हो गया जे। और सबसे पहले इसने मौलवी अब्दुल करीम को दिखाया। और मौलवी अब्दुल करीम कहते हैं सुन के बड़ा परेशान हो गया, वो उसने सिर हिलाया तो उठ के टुर गया। उसको मिर्जे ने कहा, भाई मुझे अभी अभी इल्हाम हुआ है कि तेरे काम तेरी नमाजों से अफजल है। तो मौलवी अब्दुल करीम सोचने लगा, हुण मैनू की कमाया इस बंदे ने। और फिर आगे एक और किस्सा लिख दिया कि एक बगदादी मौलवी आया, उसने गुलाम मुर्तजा से पूछा, कहा कि तूने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी अपनी जिंदगी में, तुझे अल्लाह माफ नहीं करने वाला। अब मिर्जियो मुझे ये बताओ कि मिर्जे की कौन कौन से झूठ का इनकार करोगे? ये बड़े ऐसे हैं लोग। बेशक बेशक। लेकिन डॉक्टर साहब ये एक बात करते हैं सारे ही अहमदी बहुत ज्यादा, कि देखें हम किस कदर फैल गए। डॉक्टर साहब क्या फैल गए, इनकी इधर कोई वैल्यू नहीं है यूरोप में। नहीं नहीं, कोई कैंसर इनको पूछता नहीं। ये जिधर अपनी वो इबादत खाना बनाते हैं उधर लोग रिपोर्टें करनी शुरू कर देते हैं। अहले मोहल्ला के लोग जो हैं वो कहते हैं इधर से उठाएं ये शोर शराबा, ये गंद, ये बाहर कूड़े के ढेर, हमने नहीं इन लोगों को ऐसा एक्सेप्ट करना। मैंने बहुत सारे गांव देखे हैं जो जगह लेते हैं तो लोग इन्हें उठवा देते हैं उधर से, फिर ये बाहर जंगलों में जाके, जिस तरह वो हदीकातुल मेहदी खरीदी है ना इन्होंने एक साइड पे घोड़े चराने वाली जमीन, इस तरह फिर जमीन लेके उधर मार्कियां लगाते हैं। डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है, बकवास करते हैं हम इतने फैल गए, हम करोड़ों में हो गए। मैं एक मेरे इनमें कुछ लोग इनके वाकिफ जो है ना, इनको चलाने वाले खाओ खाओ पीऊ लोग जिनको आप कहते हैं, उनकी एक लिस्ट है मेरे पास। मैं उन सबको जानता हूँ जो चंदा खाते हैं। और 10-10 घर उन्होंने खरीद रखे हैं। और जाहिरी तौर पर उन्हें $100 या 100 पाउंड जो है ना, महीना या हफ्ता मिलता है। इस तरह के थोड़े से पैसे ऑफिशियली मिलते हैं, लेकिन उनके 10-10 घर हैं। तो मैंने उसको कहा कि भी ये हादा फजले मिर्दा है, ये जो तेरे घर हैं, वो ऐसा है कि जब चंदा आता है ना, ये मिल बांट के उसमें से बहुत पैसा खा जाते हैं। अब भी अब निकलवा लेते हैं, पहले और भी इनके बहुत सारे तरीके थे ऐसा करने के। तो इनका जो फैलने वाला मामला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका एक आदमी है, मैंने उससे कहा कि यार आपको पता है ना तबशीर का महकमा होता है, आपको तो पता, मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए, पता है ना जी तबशीर जी वाले? जी। जी जी। तफसीर वाले जो होते हैं ना, ये ह्यूमन रिसोर्सेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है जो एम्प्लॉयमेंट का, आदमियों का हिसाब रखता है, तनख्वाहें तनख्वाहें बांटता है, इस किस्म के लोग देखे हैं ना। तो इनकी जी तबशीर जी। वही है कि जो हिसाब रखती है कि जमात में कितने आदमी थे और कितने आदमी हैं और कौन कौन है, और उस सब का हिसाब, किस मुल्क में कौन कौन है, कितनी जमात है, किसने चंदा दिया किसने चंदा नहीं दिया। इनके पास बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हिसाब है। हर आदमी की एक लिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर पर। आप उसमें आदमी का नाम क्लिक करें ना, तो उसकी डिटेल आनी शुरू हो जाती है। उस डिटेल में ये लिखा है इसके रिश्तेदार कौन कौन से हैं, ये कहाँ है, इसका एड्रेस क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है। और सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है कि उसके नीचे एक गोशवारा, जिसको नहीं कहते हैं, कि टेबल बना होता है, उसमें लिखा होता है इसने कितना चंदा दिया पिछले सालों में। ठीक है, उसका सारा चंदा दर्ज होता है। और मुझे वो कंप्यूटर देख के इतनी हैरानी हुई कि एक आदमी का चंदा पिछले 20 साल का रिकॉर्ड था वहां पर। और मैं क्या, ओए मरजइयो, ये तो उसका मतलब सबसे पर्सनल प्रोफाइल तुमने बना रखा है। तो खैर उस पर मैंने देखा तो मुझे दो बातें पता लगी इनके स्प्रेड होने की। पहली बात यह है कि आपको पता है इनका एक AMIS नंबर होता है, एम्स नंबर। जी जी। जी जी। वो नंबर अगर आप गौर करें तो वो 4-5 डिजिट से ज्यादा नहीं आगे जाता। जी उसकी वजह है कि हर मुल्क में एम्स नंबर अलग से शुरू होता है, 1 2 3 4।
ठीक। और जब ये कंप्यूटर में फीड करते हैं तो एक कोड लगाते हैं उस मुल्क का साथ में, लेकिन वो कोड एम्स के नंबर पर बास अब शायद लिखते हो, पहले नहीं लिखते थे। फिर किसी मुल्क में बड़े शहर हों, जैसे लंदन है इंग्लैंड में, तो लंदन का एम्स जो है वो मुल्क के अंदर के एम्स के साथ मैच नहीं करता, वो अलग है। जैसे वो करें कि कनाडा में ऐसा है कि जनाब 1 से लेकर 20,000 25,000 तक एम्स नंबर है, और वो उसका ताल्लुक अमेरिका के साथ नहीं है। इस तरह इन्होंने हर मुल्क का और बाज़ मुल्कों में बाज़ शहरों का भी अलग एम्स नंबर दिया है। उसकी वजह यह है, फ्रॉडिये नहीं चाहते कि आप एम्स नंबर देखकर बता दें कि इनके कितने लोग हैं। होना तो ऐसे चाहिए था कि पूरी दुनिया में ये एक सीक्वेंस में लाते। मैंने उससे पूछा, यार ये तुमने क्यों सीक्वेंस नहीं बनाया हुआ, तुम मतलब ऐसा करो कि ये जो नंबरिंग कोडिंग होती है ना, मेडिसिन में भी होती है, हर हर डिपार्टमेंट में कोडिंग के पीपल होते हैं, वो कोड लगाते हैं चीज़ों पर, दवाइयों पर, इंसानों पर, टेबल्स पर। उनका एक तरीका है कोडिंग का, बड़ा एडवांस साइंस है कोडिंग। तो मैंने कहा कि ये उनको कहा कि देखो कोडिंग की साइंस है, तो तुम सीक्वेंस में क्यों नहीं, ताकि सबको पता लगे कि तुम 22 करोड़ हो गए हो, तो तुम दरमियान में से मिस कर दो धोखा देने के लिए। 1 से लेके लाख तक, फिर 50 लाख से लेके 51 लाख तक, तो 20-20 लाख का फ्रॉड करो दरमियान में। कहते हैं नहीं जी, वो हमें बड़ी मुश्किल होती है, अब लोग आते जाते रहते हैं, कोई बढ़ता है कोई कम होता है, तो फिर वो मुल्क में के साथ ही उनका नंबर देना होता है ना। मैंने कहा नहीं, कोडिंग ऐसा नहीं कहती, कोडिंग एक सीक्वेंशियल चीज है। तो खैर इन्होंने ये फ्रॉड इसलिए किया है कि किसी को पता ना लगे कि पूरी दुनिया में इनकी तादाद कितनी है। नंबर 1। नंबर 2, ये बात जो है ना, ये छुपाने के लिए कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं, ये बात भी किसी को ना पता लगे। अब देखें, मैं आपको मिसाल देता हूं, कनाडा में मेरा ख्याल इनका सबसे बड़ा नंबर जो है वो इन्होंने कोई 30 या 40 हज़ार के करीब रखा हुआ है। उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मर गए हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो कादियानियत को सिर्फ हेलो कहने आए और हाय करके चले गए और दोबारा कभी नहीं आए, और वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी सूरत में इनको, मैं कहता हूँ सब का नाम इन्होंने लिखा हुआ है। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ, बोस्निया का लोग सुना है आते थे, और ईस्ट यूरोपियन बाज आते थे, तो ये बसें भर भर के आते थे, उनकी लिस्ट बनाते थे, नाम शाम लिखवा लेते थे, चाय पानी पिलाते थे, उसके बाद वो लोग कभी नहीं आते थे। इनकी तजनीद में लिखा है कि वो कादियानी है। ऐसे हजारों लाखों लोगों का नाम इन्होंने बिला वजह लिख रखा है, जिनका एक पैसा चंदा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में, मैं आपको ये बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो कादियानी है ना, जो अपने आप को कादियानी कहते और समझते हैं, उनकी तादाद 3 लाख से कम है। हैरत की बात यह है कि चनाब नगर में आधे से ज्यादा कादियानी कादियानियत छोड़ गए हैं, और उनमें से बहुत सारे इनको चंदा या नॉमिनल सा देते हैं या बिल्कुल नहीं देते, लेकिन वो फंसे हुए हैं ना। चनाब नगर की ज़मीन सदर अंजमन अहमदिया के नाम है, और वो सब लेट हुई है इन लोगों को, इसलिए चनाब नगर में घर नहीं खरीदना चाहिए किसी को भी, क्योंकि वो उनका अपना घर नहीं होता। वो सदर अंजमन अहमदिया किसी वक्त भी आपको निकाल लीज कैंसिल कर सकती है। वो लीज होल्ड घर हैं सारे के सारे, अगर किसी को नहीं पता है। तो मिर्जों की तो इजारादारी है, लेकिन बाकी लोग अपना पैसा ज़ाया करते हैं। अगर कादियानियों की ली हुई ज़मीन पर कोई घर बनाता है तो मतलब लानत की खरीदारी करता है। तो इनके जो दुनिया में तादाद है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। ये तादाद को इसलिए बढ़ाकर बताते हैं ताकि अहम ओहदों पर कब्जा कर सके। मुल्कों के, जैसे मैं आपको बताऊं, बरतानिया में अपने जलसा सालाना पर आप चलाकर देख लें, ये लोगों को बुलाते हैं, वजीरों को बुलाते हैं, बड़े बासर लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं देखो जी हमारे कितने देखने वाले आए। फिर एक जाली फिगरिश, पिछले साल काउंसिल के मुताबिक 4,000 और कुछ लोग इनके जलसे पर आए, जिनमें से आधे से ज्यादा दुनिया के दूसरे मुल्कों से आए हुए थे। इन्होंने कहा 45,000 आए। मैंने काउंसिल वाले आदमी से जाकर पूछा, मैंने कहा कि भाई एक बात मुझे बताओ, ये 45,000 तो नहीं आए, तुम्हें पता नहीं ये झूठ है? कहता है हमें पता है कि 45,000 नहीं आए। तो मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं? कहते हैं दे आर टॉकिंग अबाउट द विजिट्स,
यानी कि एक आदमी आया बाहर निकला, आया बाहर निकला, जितनी दफा गया हर दफा वो इन्होंने उसका एक आदमी बनाकर आपको बता दिया, हालांकि एक आदमी 8-10 मरतबा आया गया उस दरवाजे से जो इनका नंबर गिन रहा था। तो ये इनका फ्रॉड है, ये इनकी धोखाबाजी है। चौथ साहब आप कहाँ चले गए हैं? चौथ साहब, ये चौथ साहब कहाँ चले गए हैं चंदा पे? मेरा ख्याल है चौधरी भाई सो गए ने या दूर हो गए ने। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ अभी ਇਹ। चलो, अभी तो यहाँ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ पेशेंट। जी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਹਰ ਦਫਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱਬਾ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਐਲੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਛੋੜੀ ਨਾ 2014 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਾਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਰ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਛੋੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ, ये जो पॉलिटिशियंस है ना, इनमें से ਹਾਂਜੀ। एक ऐसा सियासतदान है जिससे मेरी बात हुई थी, जो पाकिस्तान में इलेक्शन में नहीं खड़े। जी जी। मैंने उसे कहा था कि जो अगर तू मिर्जे से मिलकर गया तो तू इलेक्शन नहीं जीतने वाला, तेरी बैंड बज जाएगी। वो गया जी, वो पहला मसरूरे को मिलिया, उसने अपने आदमी भेजे, तो हमें पता लगा कि उसने ये किया। तो मैंने उससे कहा कि देख, तो कहता है नहीं जी ये क्या है, हमारी तो बड़ी पॉपुलैरिटी है। मैं कहता हूँ बैंड बज गई है उस आदमी की। अच्छा। हाँ, अल्लाह देखे। उसकी डबल बैंड बज गई है। अल्लाह, ये अल्लाह ताला के काम देखे। हाँ, मैंने उसे कहा था, मैंने कहा था मिर्जैया को ना जाएं। और ये बात हम्म हमने उसको भी, मैंने तो नहीं कही लेकिन किसी ने उसको, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आजकल ना, ये जो है इनको बताते हैं कि मिर्जइयों से बचो। और जो जो इमरान खान की साबका बीवी नहीं है, उसे भी किसी ने एक दफा कहते हैं कि बता दिया कि मिर्जइयों के पास मत जाना, नहीं तो तेरा बंदा ना सिर्फ हारेगा बल्कि कढ़िया जाएगा। तो हम्म इस दफा वो नहीं गई मिर्जइयों के पास। हम्म उसे पता लग गया, उसने बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझे बता रहा था कि उसने किसी छोटी सी मीटिंग में ये कहा था कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है, लेकिन जाते हैं, सारे जाते हैं ये लोग। अब उनके पास इसलिए नहीं जाते कि उनकी तादाद है या उनका वोट है या ऐसा कोई बात नहीं है। वो जी इसलिए जी इनके पास जाते हैं कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा। आप देखें, वो बाजवा जो था वो खबीस का बच्चा कादियानी था, जो हमारा चीफ ऑफ जी जी स्टाफ था आर्मी का। इस तरह आर्मी जी में इस वक्त जो रेड टेप में है, 26-27 लोग कादियानी हैं या कादियानियों के सहूलतकार हैं, यही नेवी में है, यही एयरफोर्स में है। और जब आपका दुश्मन
آپ کی طاقت پر قبضہ کر کے اور انہوں نے مرزائیوں نے سازش کر کے ایک دفعہ ان کی ایٹامک پاور جو ہے نا اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ ایک بڑی لمبی غداری کی داستان ہے، اس میں ہمارے بہت سارے جرنیل انہوں نے جی ایچ کیو میں مروا دیے تھے. تو جی یہ جی بہت مشرف کے وقت کی بات ہے. تو یہ جو ہیں یہ تو غداروں کے غدار ہیں، یہ جال سازی جوڑ توڑ کے ماسٹر ہیں. ان کی فزیکل اگر آپ ان کا نمبر دیکھیں تو ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، کتے والی حالت ہے ان کی. جی جی بالکل بالکل. اور ذلت ان کی مقدر ہے چودھری صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب ذلت ان کی مقدر ہے اچھا ڈاکٹر صاحب، بیچارے. میں ہاں ایم جی سوری، میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا. جب آپ مجھے آواز دے رہے تھے میں اس وقت بھی سن رہا تھا، لیکن میں تھوڑا سا دور تھا. جو ربوہ کی آپ لیز کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں انہوں نے لیز لیا ہوا ہے اس کو، لیکن جو بندہ کسی بینک سے یا کسی بھی آپ کمپنی سے کوئی چیز لیز لیں، اس کو ڈاکٹر صاحب بندہ بیچ نہیں سکتا. بالکل نہیں بیچ سکتا. یہ 99 ایئر کی جو لیز ہے، پہلی بات تو ہے یہ قانونی طور پہ اللیگل ہے، یہ نہیں لے نہیں نہیں آپ سکتے تھے. سکتے ہیں چودھری اب صاحب اس دوسری، کو، جی لیکن آپ کے جو مالکانہ حقوق نہیں ہوتے اس پر. ہاں، اب دیکھیں جو مالکانہ حقوق نہیں ہوتے، جو جس بندے کے مالکانہ حقوق نہیں ہیں وہ بندہ کوئی بھی ایگریمنٹ کر کے کسی کو وہ بیچ نہیں سکتا. یعنی کہ وہ کسی طرح کا بھی ایگریمنٹ کر کے اس کو بیچ نہیں سکتا، وہ مالک کی ہوتی ہے، انہوں نے وہ خریدی نہیں ہے. انہوں نے خود، ان چوروں نے اپنے قادیانی ملنگ ملنگنیوں کو وہ زمین بیچی ہوئی ہے. چندہ سسٹر کو پتا ہوگا، وہاں پہ ملنگوں نے بائے کر کے گھر بنائے ہوئے ہیں. ہاں انہوں بڑی نے مہنگی پلاٹ، بیچی ہوئی ہے. ہاں، یہ خود چور ہیں. ان چوروں کو پتا نہیں تھا کہ ایک دور آئے گا قادیانی ملنگ ملنگنیوں کو ہوش آ جائے گی. انہوں نے ان کو بیچی ہوئی ہے. انہوں نے وہ جو لیز ہے اس کی خود وائیولیشن کی ہوئی ہے. کیا ان کی کوئی وہاں پہ، چونکہ انہوں نے بیچی ہوئی ہے، میں اس کی مثال، میں وہ نام نہیں آپ کو دے سکتا کیونکہ پرائیویسی ہے کچھ لوگوں کی جو میرے پاس ہے. وہاں پہ ملنگ ملنگنیوں کے کیسز ہوئے جو لیز کے ایریے میں ہیں. اس ایریے میں جو ملنگ ملنگنیاں رہتے ہیں قادیانی، ان کے کیسز ہوئے پراپرٹی کے. اب وہ کیسز گئے لالیاں کوٹ میں جج صاحب کے پاس. عدالتی فیصلہ ہوا کہ یہ زمین فلاں ملنگ نے فلاں ملنگ کو فلاں ایگریمنٹ کے تحت دے دی ہے، لہذا یہ زمین اب اس ملنگ کی ہو گئی. نہ کسی جماعت کی این او سی کی ضرورت ہے، کورٹ کا فیصلہ اس لیز پہ آخری فیصلہ ہے. میں اس کی آپ کو مزید ایک مثال اس کو ایکسپلین کرنے کی ٹرائی کرتا ہوں. اگر جماعت کی این او سی کے بغیر عدالت مداخلت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ یہ قادیانی پیروں کی زمین ہے، جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ دیں. تو اب بات یہ ہے کہ دو ملنگ اگر لڑ پڑیں تو ان کو جانا چاہیے تھا قادیانی پیروں کے پاس، نہ کہ کورٹ کے پاس. اگر ایک قادیانی ملنگ کورٹ میں جاتا تو دوسرے قادیانی ملنگ کا وکیل کہہ سکتا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ قادیانی پیروں کی ہے، وہ مالک ہیں، عدالت کا اختیار نہیں ہے اس زمین کی تقسیم کرنے کا یا اس زمین کو ایک دوسرے کے نام کرنے کا. عدالت صرف اور صرف اسی زمین کو
हैंडल कर सकती है, किसी के नाम मुंतकिल कर सकती है, जहां दोनों पार्टियां जमीन के मालिक की हैसियत से पेश हों। कादियानियों को सबसे बड़ा धोखा अभी तक इन बदकारों ने यह दिया हुआ है कि उस लीज की जमीन को कादियानी मलंग खुद ना बेच सकता है ना रख सकता है सिवाय कादियानी पीरों के एनओसी के। ऐसा सिरे से कुछ नहीं है। ये इंफॉर्मेशन कादी देखें, इन चोरों ने पहले उसकी वायोलेशन की हुई है। इन्होंने लोगों के सामने बेची हुई है वो जमीन। तो ये इनकी वो बदकारी, इनकी वो अजारादारी कुछ भी वहां पे नहीं है। आम कादियानी मलंग मलंगनियों को होश नहीं है। आम कादियानी मलंग मलंगनियों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास बाज केसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, बाज कोर्ट्स के फैसले हैं। मैं इन उन फैसलों की बुनियाद पे जो मेरे पास है, मैं उनकी बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ, ना कि सुनी सुनाई बात पे। जी डॉक्टर साहब। हाँ नहीं, बात आपकी ठीक है, ये तो जालसाजों का गढ़ है। एक बेईमान से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। हाँ जी, रह गई बात जो चंदा सिस्टर की, इन्होंने बोला जी हम वो निकाल देंगे, हम बेल्जियम हुकूमत हो, जर्मन हुकूमत हो, जो सी मर्जी हो, अगर चंदा सिस्टर के वहां पे हकूक ही नहीं थे तो कोई ऐसे एम्बेसी, कोई अदालत, कोई बंदा मुदाखलत नहीं कर सकता। मेरा मेरा ट्रक है, कोई अदालत ये नहीं कह सकती कि ये फलां का है जब तक उस बंदे के पास मालकाना हकूक ना हो। अगर उसके पास मालकाना हकूक ही नहीं है, वो अदालत को कहे जी वो ट्रक जो है, तो वो जब उसके पास मालकाना हकूक ही कोई नहीं, तो अदालत कैसे मुदाखलत करेगी बताएं। वो आप डॉक्यूमेंट्स जो थे, वो जो एग्रीमेंट था, उसमें ये मालिक थी, तब जाके कोई अदालत कह सकती है। मैं कहता हूं जी मेरी ये घर है, ये मेरा ट्रक है, और मुझे फलां बेदखल करना चाहता है, फिर अदालत देखती है कि हाँ भाई आपका, आप तो मालिक है। अदालत कहती है इसको कोई बेदखल नहीं कर सकता, मेरे पास पेपर ही कोई नहीं है, मैंने लिखवाया हुआ है कि ये मेरा ही ट्रक है, इसका कुछ नहीं है। अदालत क्या करेगी बताएं, एम्बेसी क्या करेगी? आम कादियानी बेचारों को पता नहीं है, उनको अवेयरनेस देने की जरूरत है। जो लोग रवा में बैठे हुए हैं, जिस जिस चप्पा जमीन पे बैठे हुए हैं, वो कादियानी मलंग, बिल्कुल बिल्कुल चौधरी भाई, बिल्कुल ये आपने सही वो बात की है, क्योंकि कादियानी, अम्मी अब्बू का जो घर है वो जमात के कब्जे में है, जमात के अंडर है अम्मी अब्बू का घर। इसलिए कि जब रवा बना था वो डॉक्यूमेंट अम्मी अब्बू के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने जगह खरीद के बनाया हुआ है घर। अब जमात ने उधर अपनी फैमिली बिठाई हुई है और उनकी इजारादारी है उधर। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। नहीं नहीं, अम्मी अब्बू ने जो किया हुआ है, आप उसको थोड़ा सा और डीप जाके देखें। अगर उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, आप लीज की जमीन नहीं बेच सकते। उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, उनकी बदमाशी है। आप जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, इनको छोड़ना पड़ेगा। आप किसी वकील से बात करें। मैं लीज पे ट्रक लिया बैंक से, मैं किसी को बेच के जेब में पैसे डाल दूंगा, जेल में जाऊंगा। जब तक मैं लीज पे करके ट्रक अपने नाम नहीं करवा लेता उस कंपनी से। अब देखें, लोग यहाँ पे कनाडा में 2 लाख से ऊपर का ट्रक है। अब तो 2.5 लाख हो गया अच्छे वाला ट्रक जो है, ठीक है। लोग $5,000 दे के ब्रांड न्यू ट्रक ले लेते हैं, जैसे आप लोग घर ले लेते हैं 5%, 2%, 3%। डॉक्टर साहब मेरी आपको आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। आप मुझे बताएं, आपने घर लिया है 5% दे के, मिलियन का घर, 50,000 आपने दिया, 9,50,000 आपने बैंक से
बोरो करके मिलियन का घर ले लिया, ठीक है जी। अब मुझे आप बताएं कि आप किसी बंदे के साथ सौदा करो कि मैंने ये 8 लाख का बेचना है, 8 लाख मैंने उससे लेके उसको स्टाम्प वगैरह बना के दे देता हूं, मैं जेल में जाऊंगा कि नहीं? डॉक्टर हाँ जी, साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक, हाँ हाँ, ठीक बात है आपकी। मैं वो घर, मैंने ट्रक लिया, अच्छा क्रेडिट हो, आपको फ्री ट्रक मिल जाता है, आपने जस्ट जाके साइन करने हैं, आपने किस्तें देनी है। आपको पता है जिन लोगों का क्रेडिट अच्छा हो, साइड पे कोई अच्छा बिजनेस हो, वो 0% पे घर बाय कर लेते हैं, ठीक है। मिलियन का घर उसको चाबी मिल जाती है सिर्फ इस बात पे कि बैंक ने उसको बोरो कर दे दिया, मनी बोरो कर दिया, ठीक है जी, लेंडर ने। अब $1 मिलियन का घर दिया, आप कुछ है नहीं, मैं कहता हूँ ये मेरा घर है, वहां एक बंदा कहता है, मैं कहता हूँ दे जी 9 लाख ले लें घर, जेल में जाऊंगा। आपके वालिदैन ने पैसे दिए और ये कादियानी पीरों ने अपने वहां पे बंदे बिठाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। रबवा के अंदर एक कादियानी पीर ने एक मलंग ने घर बाय कर ली है जैद बकर से, वहां पे आप लोगों ने बेचा, मैंने बाय कर लिया, आप बेच ही नहीं सकते, तो फिर लोग वहां पे आपस में क्यों बेच रहे हैं? अगर बेच रहे हैं, जमात एनओसी दे रही है कि जी फलां मलंग अपना 50 लाख का घर दूसरे मलंग को बेच सकता है, जमात ने एनओसी दे दी, तो घर तो आपने बाय कर लिया, बताएं, घर तो आपने बाय कर लिया। अब आपको कोई निकाल दे जमात के ये तो हमारा लीज का, निकलो यहां से, तो 50 लाख किसने देना है? ये वो बातें हैं जो आप जाके वकील से डिस्कस करें। जिस जिस मलंग ने लिया हुआ है, कादियानी मलंग है या मलंगनी है, वो घर उसका है, इन बदकारों का नहीं है। ये बदकार आपको नहीं निकाल सकते। एक और मैं बात बताऊं, चंदा सिस्टर को ज्यादा पता होगा, जिस जिस प्रॉपर्टी पर, कई वो इनकी प्रॉपर्टी थी लीज की, जिस पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जो दूसरे लोग इर्द गिर्द के देहातों वाले, कोई मजदूर हैं, कोई मुसलमान है, कोई दूसरे हैं, ठीक है, ये इनके पास अमूमी के डाले भी हैं, ये सिर्फ लित्तर मार के निकालते हैं कादियानी मलंगों को, अखराज की सजा दे के या वैसे डरा डरू के। जहां जहां कोई मुसलमान बैठ गया है या वो जो इनकी बात नहीं मानता, उनको निकालने के लिए, अगर ये प्रॉपर्टी इनकी है तो ये अदालत से जाके ऑर्डर लेके निकालते क्यों नहीं उनको? इसलिए ये खुद चोर हैं, अदालत में ये जा नहीं सकते, ऑर्डर ये ले नहीं सकते। इसको बोलते हैं पंजाबी में, वो लफज तो कुछ और ही है, जिन्हों जिन्हों डॉक्टर साहब कहते ने फोके फैर, खाली फैर नहीं होते, हाँ जी, फोके फैर आपने शायद सुना होगा, आंध ने क्या हमें फोके फैर पे करता है, या आई डोंट नो लाइक आप क्या लफ्ज उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे धमकियां जिसको बोलते हैं, खाली धमकियां। मेरी प्रॉपर्टी है, कोई बंदा आके बैठ जाए, मैं राइट वे कोर्ट का ऑर्डर लेके निकाल सकता हूं। जब मैं खुद चोर हूं, मैं खुद वहां पे चोरी की हुई है, ड्रामेबाजी की हुई है, मैं किसको निकालूंगा? एक कादियानी मलंग दूसरे कादियानी मलंग के घर उसने बाय कर लिया है, अब कादियानी पीर उसको कैसे निकालेगा जी, बताएं मुझे, लीज की जमीन है, तो ये चोर नहीं किसी को निकाल सकते। कादियानी मलंग मलंगनी को पता नहीं है, आपस में जो बेच रहा है वो बेचे। हाँ, एक बात है सिर्फ, जो कादियानी मलंग और मलंगनी, इन कादियानी पीरों का जिसको अखराज का लितर का डर है, वो कहेगा आमदी, अगर आपने घर बेचना है तो वो आमदी वो दूसरे जैसे ये कह देंगे कि देखें जी जमात का एनओसी नहीं है और ये कादियानी मलंग घर नहीं बेच सकता। अब जमात वाले वो जो मलंग मलंगनियां, वो कहेंगे देखें आपका जो है ना, वो जमात इजाजत नहीं दे रही, तो उस बंदे को सिर्फ ये मुश्किल है कि कोई कादियानी मलंग या मलंगनी उसका घर नहीं खरीदेगा, बस।
दुनिया का कोई बंदा जाके उस घर के पैसे दे के उसके अंदर बैठ जाए, वो क्या बोलते हैं पंजाबी में कि पेशाब नाल मेरी आन के दाढ़ी मुन छड़ियो जे कादियानी पीर उन्होंने कट जाते। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। नहीं खरीद सकेगा। हाँ, हर वो कादियानी मलंग मलंगनी भी खरीद सकता है जिसको अखराज के लितर का डर नहीं है। जो कादियानी मलंग मलंगनी अखराज के लितर से डरता है वो कहेगा देखें जी जमात से एनओसी लेके आए, जमात का आपने इजाजतनामा लिया। जिस कादियानी मलंग, और बेशुमार ऐसे कादियानी मलंग मलंगनियां अब हैं जो अखराज के लितर को, उनके पास अखराज के लितर से भी बड़ा लितर होता है। जो कादियानी मलंग मलंगनियां अखराज के लितर को कुछ नहीं समझता वो उस घर को खरीद सकता है। जाए इसको चैलेंज करें। कादियानी मलंग मलंगनियां जो रवा में बसने वाले हैं उनको पता नहीं है, उनको कोई बड़ा अवेयरनेस देने वाला नहीं है। बड़ा अब कॉन्फिडेंस आ रहा है दुनिया में हाँ, मैं आपको ग्रंटेड कहता हूं, जिस बंदे को हेल्प चाहिए, जिस बंदे का, आपको चंदा सिस्टर वहां पे घर का इश्यू है, वहां पे उनके घर पे ये कब्जा कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जिनका ये अपना घर है, जिन्होंने बनाया है, जिनके माँ बाप का है, जिनके भाई का है, मेरे साथ करें राब्ता। ठीक है, सील ऑफ या खलीफा लगाया हुआ है दरवाजे पे, और कह रहे हैं कि ये मुतनाज़िया जगह है, बहन भाइयों की पुआड़े पड़े हुए हैं, नहीं भाई नहीं, भाई के बहन दुश्मन भाइयों के बने पड़े हैं। जाएं आप। हम्म। हाँ, मुझे करें प्राइवेट में कॉल, नहीं मैं नहीं, आपको उन्हें मैं बताता हूँ। कहती हूँ, भाइयों को मैं मैसेज देती हूँ कि इनसे ना डरें, आपका हक है, ना दो बहनों को, लेकिन आप मेरे अपने भाई पास भाई को। कोर्ट के, मेरे पास कोर्ट के फैसले हैं। कादियानी, देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, कादियानी पीर मसरूरा बदकार, बोके दे मुंह वाला खोते दा बच्चा, 42 मिनट निदा जो वो मलंगनी थी जिसके साथ ये जना रेप करता रहा सारा खानदान, 42 मिनट उस मलंगनी के सामने हाथ जोड़ता रहा। ओ ना जाई तू, मैं जमात पीछे ला दांगा, साडा एक फोरम बना हुआ है, वहां जाके शिकायत करो। उन्हें मारी जुत्ती दे मुंह दे उत्ते, उन्हें कहा चल खोते दिया बचिया। उसने केस किया, और निजाम बना हुआ है तो रोक के दिखाओ उसको। खलीफा बने हुए हो, निजाम है, रोको। सेम बात, कादियानी मलंग मलंगनियां जो रवा के अंदर रहती हैं, जो जो कादियानी मलंग मलंगनी कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया, कादियानी मलंग, ये जो पीर है ऐसे ही पेशाब, कहते हैं ना पेशाब की वो झाग की तरह बैठ जाएंगे, जिस तरह निदा के मामले में ये सारी जमात बैठ गई। कादियानी जो मलंग मलंगनियां रवे के अंदर बसने वाले हैं, वो खा खा के जूते खराज के और सुनी सुनाई बातों पे ये पीर वो करता है। कैनेडा में मुझे बताएं, आज कैनेडा के अंदर कोई कादियानी मलंगनी का है मरबी को, चलो दफा हो, मैंने नहीं आपकी बात सुननी, बताएं मुझे कोई मरबी उसको फोर्स कर सकता है? कोई भी नहीं। जिस कादियानी मलंग मलंगनी ने रवा के अंदर जगह खरीदी है, उसके बाप ने, उसके उन्होंने खरीदी है बस, और एक मलंग ने बेची है, और कादियानी जमात ने उनको सबसे पहले बेची है। लीज की जमीन बेचने वाला खुद चोर है, और चोर कभी अदालत में नहीं जाता। लेके जाए बदकारों को अगर ये आपको ये वहां पे तंग करते हैं, कुछ भी नहीं है वहां पे। जिन जिन लोगों को होश है वो लोग इनको जूते की नोक पे लेते हैं, और जिन कुछ भी मलंग नहीं, मलंगनियों को होश सदर नहीं है। सदरों को नहीं कोई जान रहा। मैंने जब इधर बेल्जियम में एक वो मरजई का घर था, सदर जमात था, उसके अपार्टमेंट था, तो उसने कहा आपने जमात छोड़ी है, मेरा बस से पता चला है, आप मेरा घर खाली करें, वरना जो है ना नुकसानात आपके जिम्मे होंगे। और मुझे कहीं से पता चला, कह रहा है कि मैंने ना आग लगा देनी अपार्टमेंट को, और कहना है कि ये बीबी पागल थी, इसने हमारा अपार्टमेंट जला दिया है।
तो हाँ वो मैंने आपने उस हाँ जी, आपने पहले थोड़ी सी बात सुनाई थी, आप उसकी करते ना हाँ जी। रिकॉर्डिंग उस बदकार की। मैंने उसे मोहलत दी कि मैं 2 दिन में घर छोड़ दूंगी। अब 2 दिन में पूरा घर जो 10 साल का बना हुआ बंदे की चीजें सेटिंग कहाँ उठा के ले जाए। अच्छा वो सद्दर और मुरब्बी आया, मैं वेपर पकड़ के जब भागी ना उनके पीछे तो दौड़े, हाँ वो ऐसे आपने दौड़े बताया ही नहीं। गली, गली में नजर नहीं आए, कहीं गली में भी नो नजर नो नहीं नो, आए। मुरब्बी जब नो नो आया नो, ये मरबी क्या है? कुछ ये भी नहीं मरबी, है। ये खलीफा। ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗਣੀ ਬੈਠਾ ਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰ ਮਸਰੂਰਾ ਬਦਕਾਰ बैठा है। हम्म, लेकिन आम कादियानी मलंग जो है वो खुद कमा के खा रहा है। वैसे तो ज्यादातर मलंग झूठ बोल के खाते हैं, लेकिन वो खुद कमा के खा रहा है, ये उनसे भीख मांग के खा रहा है। काम करने को किधर इनका दिल करता है चौधरी भाई, आपको पता ही है। सौ हाँ ये बहाने जो लगा के मिर्जे हाँ, वाली बीमारियां हर वक्त बताते रहते हैं, और डर के इनको काम पे कोई नहीं रखता है। चंदा सिस्टर, मैं आपको बताता हूँ, जो कादियानी मलंग मलंगनी मेरी बात आवाज सुन रहा है, रबवा के अंदर जो बसने वाले मलंग मलंगनियां हैं, इन पीरों का खौफ उतारें। जिनको ये कादियानी पीर तंग कर रहे हैं मुझे बताएं, मैं देता हूं उनको डॉक्यूमेंट्स, मैं देता हूं उनको सारी इंफॉर्मेशन। जाएं जाके इन बदकारों के दरवाजे खटखटाएं, इनकी जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कादियानियों को पता नहीं है। आपके सामने है, मैंने पहले अभी बताया, डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं। निदा को ये कादियानी पीर मिर्जा मसरूर 42 मिनट पहले उसको बोलता है तेरा बनना कुछ नहीं, वो आंदी है चल दफा हो। फिर आंदा है मैं तेरे पीछे लौंडेबाज मुरब्बी ला देने, वो आंदी है चल दफा हो। फिर आंदा है मैं आप देखे जमात जो भी करेगी मैं मना नहीं करूंगी, वो आंदी है मैनू मरवा भी देगा ना ते मैं तां भी जाना, चल गा दफा हो जा। अखीर दफा होया कि नहीं? मार मार जुतियां पूरी दुनिया ने कादियानी दियां दी टूई लाल कढ़ी है, ना मुरब्बी ते ना हुन कोई लजना रही है। निदा के केस में जितने जूते इनके सिर में पड़े हैं और जितने पड़ रहे हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। ठीक है, किधर है वो खिलाफत? यही हाल रवा के अंदर है। जिस दिन कादियानी मलंग मलंगड़ियों को होश आ गई, उन्होंने कोई गैरत दिखाई निदा की तरह, ये पेशाब की झाग की तरह बैठ जाने हैं ये सारे लौंडेबाज, वो जो अमूमी शमूमी है। मुझे बताएं, कादियानी एक बच्ची है, उसके साथ जिना का केस हो गया, ठीक है, अमूमी का दफ्तर है, कजा का दफ्तर है, वो जाती है थाना रवा चिन्योट में, रवा में जाती है, उसके बाद वो चिन्योट चली जाती है, डीपीओ के पास चली जाती है। कोई माई का लाल उसको रोक सकता है? बताएं मुझे, क्यों चंदा सिस्टर? कोई भी नहीं रोक सकता। किस बात का डर है? बताएं जरा, जी बिल्कुल किस बिल्कुल। बात का डर है? लेकिन नहीं, वो हमारी जमात, वो जमात से निकाल देंगे। हाँ, वही बदकार जहालत के मारे हुए अखराज के लित्रों के डर से, वो देखे हमारी जमात हमारी जमात हमारी जमात, खुद इन बदकारों को अपने गले डाला हुआ इन्होंने। ये वो लोग हैं जो पैसे दे के जूते खाने वाले खाते नहीं मलंग, और जूते किन से खाते हैं? जो इनके टुकड़ों पे पलते हैं, लौंडेबाज मुरब्बी, वो जूते मारते हैं इनके सिर पे। आप तो चौधरी भाई चले, आप तो पंजाब के इस इलाके के रहने वाले थे ना, लेकिन जैसे ये डॉक्टर होली साहब बात कर रहे हैं, इनका जो जो गंद खाना देखा हुआ है हमारे बड़ों ने, या चुप करके बेचारों ने सहते रहना, अंदर ही अंदर कुटते रहना, छुप छुप के मेरी माँ और नानी ने बातें करनी, पेटी वाले कमरे में रोना। अब कोई अच्छा भी इनमें होगा ना चौधरी भाई, तो जैसे ये कहते हैं कि तेरी भैन नहीं मरजैन, तेरी माँ नहीं मरजैन, है तो हम उन्हीं का हिस्सा है, कादियान से थे हम तो लेकिन वो एक गिल्ट सा फील होता है, इस तरह की फीलिंग आती है ना, जिस तरह की एक कोठे की जिंदगी से उतर के हम आम शरीफ माशरे में आते हैं। तो मुझे शुरू में ना, मैं इधर मदनी वालों की मस्जिद है उधर जाती होती थी,
تو مجھے نا اتنی زیادہ شرم آتی تھی، کانفیڈینس ہی ختم ہو گیا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر پیار سے سمجھانا، کوئی کتاب دینی، کوئی معجزات، کوئی اس طرح پڑھا کے چلے، پوچھ پچھا کے اپنے ایمانی جو عقائد ہیں وہ پورے کیے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ان سے نکلتا نا وہ تو خود ایک بہت زیادہ ایک کور میں ہوتا ہے، شرمندگی مجھے تو ہوتی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جو چیزیں ہم نے فیس کی ہیں ہمارے بچے نہیں کریں گے، بس یہ ایک فخر ہے کہ ہمارے بچے مکے مدینے جائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ عید پڑھیں گے، جو ان سی مرضی مسجد میں جائیں گے، آگے شادیاں بھی مسلمانوں میں ہو جائیں گی، چلو جی بات ختم۔ تو یا یہ بات ہے کہ ہاں جی، ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر بھائی بات کریں، اور ایک ڈاکٹر اور ولی صاحب۔ بات آپ نے بیان ہی نہیں کی کہ یہ جو اپنی بیٹیوں سے زنا کرنے والے قادیانی پیروں کے ہم نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں نا گھروں میں، یہ سوروں کی تصویریں ہمارے گھر میں نہیں ہیں، کم از کم یہ جان چھوٹ گئی ہے۔ کم از کم بالکل، اور اس کی وجہ سے ہی ساری بیماریاں، ٹینشنیں اور طلاقیں، ہر گھر میں 4 طلاقیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان اللہ تصویروں معافی کی دے، وجہ سے توبہ یہ جو استغفار، نحوست توبہ لگائی ہے نا، استغفار۔ یہ جو نحوست ان بدکاروں کی گھر میں لگائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نا گھر میں برکت نہیں ہے، اسی لیے تو جو قادیانی کے گھروں میں کینسر اور ہیپاٹائٹس اور پھر بیماریاں اور پخانے اور پیٹ، یہ ان بدکاروں کی جب تصویریں آپ روز لگائیں گے سامنے، وہ کہتے نہیں لوگ کہ سویرے سویرے فلانا یار ایڈا نیش بندہ میرے متھے لگا ہے، میرے سارے دیہڑی دا انہیں بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ تے قادیانیاں نے اپنے گھر چ سب تو پہلو اگے تصویر اٹھدیا سار مرزے مسرور دی فوٹو۔ مرزا مسرور کون ہے؟ جہاں سارا ٹبر اپنی کڑی نال زنا کرتا، ریپ کرتا پھڑ کے تے وہ وہ فوٹو ویکھتا ویخ انج کے ہوندا ہے فوٹو دے وچ، جویں او فوٹواں انج دیاں نے جویں او ہوندا نہیں او بدھا بدھے دی فوٹو، جویں مٹی دا مادو، اچھا او دی فوٹو، مطلب او دیکھ کے ہی ایک عجیب جی لک آندی ہے گھراں دے وچ، لین وار، اور اگلے 40 سال تک پتہ نہیں کنا لما انہاں دا سیٹ بننا جے، حساب لاؤ۔ اور اگے جا کے چودھری بھائی روا دے وچ شادی ہوندی سی نا کسے دی، جی تحفہ کی دینا ہے انہوں، او نا مرزے دی فوٹو دے دیو، تسی حساب لاؤ، تھی بہن نو کوئی رضائی دے دو، کوئی منجی دے دو، کوئی چادر دے دو، انہوں مرزے دی فوٹو پیک کر کے دو، او 6ویں دن طلاق لے کے گھر آئی پئی۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ہاں جی گل کرو، ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے بندے نے، اسی وچ جنگ نہیں بولن لگ۔ ہاں جی، نہیں آ نہیں جدو یہو جہ زانیاں دی فوٹو دینی ہے تو طلاق ہی لے کے انہیں آنا، اور کی لے کے آنا انہیں۔ نہیں تو ہاں جی اس کی اپنی لڑکیوں کو بھی تو چاروں کو 2 دفعہ طلاق ہو چکی ہے، تو آپ کو کیا دے گا وہ؟ ایسے، اور ڈاکٹر صاحب جیسے ایک فیلنگ ہے، میں ایک لڑکی ہوں، آپ کی بیٹیوں کی طرف بات کر رہی ہوں، میرے دل کی ایک فیلنگ ہے، جیسے جب ہم چھوٹے تھے نا، جیسے 12 13 14 سال کے، تو ڈاکٹر صاحب دل کرتا ہوتا تھا کہ ہمارے نا گھروں کی پرائیویسی ہو، ہماری مائیں ہوں ہم سے علیحدگی میں بات کریں، ہماری ایک سوشل لائف ہو جس میں ہمارا باپ ہو، ہم ہم کسی کے سامنے نہ آئیں، لیکن جو صدر ہوتے تھے یا گلی محلے کے وہ جو یہی مربی ہوتے تھے، یہ اس طرح آ کے گھروں میں چوڑے ہو کے بیٹھتے تھے نا، کہ چائے پانی دینے جانا، وہ نظروں سے ہی نفرت ہوتی تھی، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری بیٹی ہے، کیسی ہو بیٹی، کبھی ان کے منہ سے بیٹی کا لفظ نہیں سنا۔ وہ اتنا بزرگ تھے، ابراہیم بھامڑی اور عزیز بھامڑی، وہ چسکے لینے کے لیے ہمارے پیروں میں تیل لگاؤ، پیروں میں بیٹھ جاؤ، وٹ از دس، ایسے لگتا تھا جیسے ہم کسی وڈیروں کے غلام ہیں، اور ایک حسرت آتی تھی کہ ہماری ماں ہمیں کہیں چھپا کے کسی اور جگہ پہ لے جائے۔ یہ ایسے بہت سارے خاندان ہیں چناب نگر میں، وہ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ان کا خاتمہ بہت قریب ہو گیا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا قادیانیوں کے وہ جو دن تھے نا وہ ختم ہو گئے ہیں اب دن نہیں ابھی تھے،
दिन का लफ्ज नहीं है मुनासिब, आई एम सॉरी। इनके जो जो जुल्म थे, जुल्म वाले जो दिन थे, हाँ नहीं नहीं, ये अब या ये इनकी देखे ना, औकात में कोई- अभी जो सिस्टर रो रही हैं, यकीन करें कि सेम कंडीशन कादियान के जो मलंग है वो मुझे बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चियां बच्चे, जब बच्चियां जवान होती थी, हम वहां से कई मलंग अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ आते थे कि बच्ची जवान हो गई है, इन ओहदेदारों, इन बदकारों की नजर ना पड़े, नहीं तो ये जोर जबरदस्ती, ये प्रोग्राम है, इसको ये उहदा देना है, ये खिदमत करे, इसको बुला, उसको इन्होंने, बदकारों ने, उस बच्ची को खराब करना ही करना है। ये बस ऐसे ही है। तो लोग अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ आते थे जब बच्ची जवान होती थी, ठीक है। और ये जो मिर्जा मिर्जा वसीम था, उसके बारे में मुझे कादियानी मलंग के बेटे ने बताया कि वो दरियाए ब्यास के किनारे ले जाना, गाड़ियों 2-3 जमात की जा रही हैं जी, हमने नासरात को ट्रेनिंग देनी है तराकी की, और वहां जनाब ओहदेदार और पता नहीं यहाँ क्या क्या बदकारी, और अपने जो इन उन्हीं लड़कियों के जो भाई वगैरह, अंकल वगैरह हैं, उनको साथ ले जाना। बच्चियों ने वहां जाना है, मियाँ साहब लेके जाना है, आप लोगों ने हिफाजत करनी है। उसने कहा हमारे जो लोग हैं उनकी हिफाजत से ये ड्यूटी लगानी कि किलोमीटर का एरिया जो जहाँ मियाँ साहब लेके 10-15 जवान लड़कियां फिर रही हैं, वहां पे हमारे बंदे ड्यूटी पे खड़े हैं कि कोई उधर न जाए। लड़कियां मियाँ साहब को दे देनी, और 10-15 लोग जो है वो ड्यूटियों पे खड़े हो जाने, उन्हीं के बहन भाई। ये है जी वो जुल्म। ये और मियाँ साहब को पूछ भी नहीं सकते कि मियाँ जी ये 15 लड़कियां जो सुबह से शाम तक और इशा के वक्त मियाँ साहब आ रहे हैं जनाब, वो लोगों के घरों को जा रही हैं बेचारी। ये है जी मियाँ साहब। जी डॉक्टर साहब सॉरी, थोड़ी कथा कलामी हो गई। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे ही करते हैं, ये इसी किस्म के लोग हैं। इनका इलाज एक ही है कि इनको जूते मार के ना वहां भेज दिया जाए जहां से इनका ताल्लुक है, और इनका कोई इलाज है नहीं। अपनी बेटी से जो जना रेप कर रहे हैं छोटी सी बच्ची से, वो दूसरों की बच्चियों को जनाब अखलाक सिखा रहे हैं बैठ के। बड़े मुँह थोड़ा मलंगो लाना ते थोड़े ते। मतलब ये तो इनको सोचना चाहिए ना, जो कादियानी देखें। कादियानी आप तो निकले हैं कादियानी से, आपको आसान लगा था, आपने झटपट कह दिया मैं नहीं मानता। बहुत मुश्किल। मैंने बहुत आज मुश्किल। भी सारे रिश्ते, मैं आज भी सारे रिश्ते बर्बाद हुए हैं, और अभी है उसी तरह की मुखालफत। और अब चूंकि मैंने कभी परवाह नहीं की, अभी तक कई मेरे रिश्तेदार इसी इंतजार में हैं कि आ कादियानी पीर मसरूरे बदकार ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਰੁੜ ਜਾਣਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਸੜ ਜਾਣਾ। ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਦੇ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ। जहालत की आपका हालात तो बेहतर हुए होंगे उसको छोड़ने के बाद, आपका क्या ख्याल है? मेरे बेहतर हो या ना बेहतर हो, मैंने गंद खुद अपनी आंखों से देखा है। अब मैं गंद को किस तरह मान लूं बताएं? निदा मैंने खुद आवाज सुनी है, बताएं मुझे। हाँ जी किताबें आप। इनकी मैंने खुद पढ़ी हैं। और जहां तक हालात की बात है, आपने मुझे बताया था काफी साल पहले कि आपके हालात ठीक हो जाएंगे। यकीन करें मैं पूरी मौज में हूँ, हाँ पूरी मौज में। हर तरह का अल्लाह का फजल है, मौजें लगी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। या हर दिन बेहतर हुआ है डॉक्टर साहब, हर दिन बेहतर हुआ है 2014 से लेके आज तक। बस वो 2 साल मुश्किल थे क्योंकि वो अम्मी अब्बू का था मसला। उनकी डेथ के बाद हर दिन अच्छा और हर दिन बेहतर हुआ है। और मैं बल्कि शायद एजुकेशन की तरफ कभी भी ना जाती, मैं भूल चुकी हुई थी एजुकेशन को। इनके कामों में ही लगी रहती थी, कपड़े सिलाई कर लो, बेच लो, बस इस तरह के काम। वो एजुकेशन के खुदा ताला ने रास्ते खोले। और इधर भी मैंने बेल्जियम में भी जो है पहचान करवाई कि ये सेक्ट नहीं है, ये कल्ट है।
ये मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। तो ये चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ना होंगे, कोई और होगा, लेकिन इनका जो है ना अब चेहरा इंशाल्लाह भी इनका होता ही चला जाएगा। नहीं, ये तो इनकी हालत खराब है वैसे। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फल फूल रहे हैं। इनको तो भीख मांगों को तो घोड़े के पैसे पूरे लगता नहीं हो रहे आजकल। आपको पता है ये मुख्तलिफ जमातों में आजकल बड़ी तेजी से कह रहे हैं कि चंदे दो, ये करो, वो करो। तो मतलब क्राइसिस का दौर है, देखें डॉक्टर साहब, क्राइसिस का दौर है, बड़े बड़े मिलियनर जो हैं वो अपनी आजज आ रहे हैं खर्चों से, तो ये तो इनका तो कारोबार ही कुछ नहीं है। ये बीबी फाइजा वगैरह इनके क्या कारोबार है, मिर्जे ताहर की बेटियों के क्या कारोबार है? कारोबार या मेहनत, वो नाले और वो मुझे याद है मैंने अपनी नानी को कभी सारी जिंदगी बैठे नहीं देखा। वो लंडे की कोटियां धो के उन्हें उधेड़ते थे, फिर उसके कंबल बनवाते थे, फिर वो कंबल बेचने वगैरह। साहब लगाए कि इनको पैसे देने के लिए एक नानी मेरी मजदूर थी, उनकी एक टांग नहीं थी, ट्रेन हादसा हो गया था, यानी कि मजदूर बंदा भी चारपाई पे आराम से नहीं बैठ सकता, वो भी इर्द गिर्द ना कोटियां बेचारी देड़ देड़ के रंग बिरंगे गोले बनाते, हमने सारी जिंदगी उनको देखा है। तो इनका कारोबार ही क्या है डॉक्टर साहब? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है, ये बस धोखेबाजी है एक, और इसके अलावा कुछ नहीं है। धोखा है सिर्फ। आज दुनिया इनको सदके खैरात देनी बंद कर दे तो ये खत्म हो जाएगा, मिर्जा खुद ही खत्म हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ ऐसे खत्म होगा जैसे कभी था ही नहीं। और ये खत्म हो रहे हैं। आप इनको ये जो है ना, ये एक झूठ पर कायम है कि नहीं नहीं जी हम ये और हम फैल रहे हैं, और जितना ये भूखे नंगे होते हैं उतना बड़ा ये झूठ बोलते हैं। ये भी इनकी एक बड़ी जहालत की बात है कि इनके हिसाब से तो 2009 में पूरी दुनिया को कादियानी होना चाहिए था, आपको जैसे मिर्जा ताहिर कर रहा था, याद है ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो 2009 भी में हवाई इन हवाई फायर इतने करता था। और डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम उसका मैं देखा एक दफा, वो जो प्रोग्राम करता होता था सवाल जवाब दुनिया को गुमराह करने के लिए, उधर एक सिख सरदार है, तो वो कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, तो मिर्जा आगे से कह रहा है वाहे गुरु। हाँ, वो जो साहब लगाए, वो जो सिख सरदार है वो सलाम कर रहे हैं, तुम सलाम का जवाब दो, तो कह रहा है वाहे गुरु, ये भी खुदा का नाम है। साहब लगाए इनके दिमाग का। नहीं नहीं, ये तो जालसाज है ना, गंदे लोग हैं, जालसाज किस्म के, इंतहाई गंदे। तो आप इनका मतलब कादियानी जो है उनकी वजह है, आपको तो शायद ज्यादा पता है, आपने ये जमात छोड़ी है। एक साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, एक रिश्ते नाते हैं, खानदान है। आप देखें ना चौधरी साहब का, आज तक उनके खानदान के लोग, और वो जो कादियानी छोड़ता है उसे मुर्तद कहते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको एक और बोलता हूँ। जी। मेरे सारे जो रिश्ते थे उन्होंने मुंह मोड़ लिया जब मैंने ये कहा दिया नियत ये मिर्जे टट्टी मूतर नु छड़िया, सभी ने मुंह मोड़ लिया। अब उन्हीं रिश्तेदारों में से बहुत ज्यादा हैं जो मेरे साथ राब्ते में हैं, ठीक है? जो हाँ, मेरे साथ राब्ते में है, मैनू एक जुत्ती जिन्नी परवाह नहीं उन्होंने, एक जुत्ती दे पौले जिन्नी मैनू उन्होंने रिश्तियां की परवाह नहीं। मैं हलफन कहना मेरे वालों दोबारा छड़ जान, ठीक है, मैनू एक जुत्ती जिन्नी परवाह नहीं उन्होंने बदकारा दी, भावें वो सुनते ने भावें नहीं सुनते, बिल्कुल मैनू चाहत ही नहीं। मैंने जो फैसला किया मैं उस पर इतना खुश हूं। अब दोबारा उनमें से कई वापस आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाँ जी की हाल चाल है? 15 काल करन मैं एक काल सुनना उन्हें, कई बार मैं कभी सुनी ही नहीं। वड्डा बंदा हो गया हूं तू, मैं जा दफा हो परा। नहीं, उन्हें पता लग गया है कि अब कोई चांस नहीं है। मतलब जालसाजी में गिरफ्तार है ना, मतलब। बदकार, बदकार। मैं आपको सच बताऊं, जिन्होंने जो एक भी मेरी आवाज सुन रहा है वो रिकॉर्ड कर ले, जाए जाकर उनको दें दोबारा।
ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਏ ਹਾਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਲਾਂਟ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਦਫਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਇਥੋਂ